Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Dear students, in the previous lecture we have discussed about the parameters estimation of correlation. You know that we have tested the hypothesis about correlation coefficient is equal to 0 and also some assigned value rho naught. Today's lecture we will discuss about the second portion of statistical inference, which is estimation of parameters, and then after doing these estimation process we will go to the SPSS package, or you can say SPSS. We will use SPSS for solving the problems relating to the statistics. Okay, so as you know that we have seen that the statistical inference has two branches, two main areas of statistical inference. It has basically two areas. The one was estimation of parameters and the other was testing of hypothesis. ठीक है, estimation of parameters, and the other was testing of hypothesis, which we have already done about the testing of hypothesis. So in the today's lecture we will discuss about the estimation of parameters. It is further divided into, estimation is further divided into point estimation and interval estimation. And interval estimation. So we will talk about the interval estimation in the today's lecture. Okay, point estimation is a single value about the unknown population parameter. I can take an example of point estimation. X bar is a point estimator of mu. X bar summation x over n, and this formula basically is a point estimator of mu. Similarly, small s square, which is we call as standard deviation, unbiased standard deviation, is a point estimator of sigma. And similarly, p hat, which is x over n, is a point estimator of p. What is p? Population parameter, population proportion. Population proportion. Okay. What is this? This is population standard deviation. And what is this mu? Population mean. ठीक है, तो these are called sample statistic, जिसको हम कहते हैं sample statistic. ये सारे क्या है? Sample statistic है. And the formula which we used, this is basically estimator. This is called estimator. ठीक है. और अगर इसकी सपोज अगर मैं कहता हूँ कि x बार की वैल्यू आई है 60 इंचेस या 60 इंचेस हाइट है, तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड एस्टीमेट.
दिस वैल्यू इज कॉल्ड एस्टिमेट। ठीक है, तो x बार इज एस्टिमेटर, whereas the particular value x bar means formula summation x over n या summation f x over summation f। तो x बार जो फार्मूला है बेसिकली, इस फार्मूले को हम एस्टिमेटर कहते हैं और उस फार्मूले से जो वैल्यू हासिल होती है उसको बोलते हैं एस्टिमेट। तो वन शुड बी क्लियर अबाउट दिस, द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेट एंड एस्टिमेटर। अक्सर हम पूछ लेते हैं एग्जाम में, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेट एंड एस्टिमेटर। तो दोनों में फ़र्क क्या है? तो आप लिखेंगे द फार्मूला विच यूज फॉर एस्टिमेटिंग इज कॉल्ड एस्टिमेटर, वेयर एज द पर्टिकुलर वैल्यू obtained बाय द फार्मूला इज कॉल्ड estimate. Now what is estimation? The process of drawing a sample from a population, and from that particular sample we draw a particular estimator, and this process is called estimation. तो estimation क्या है जी? Estimation is a procedure by which we obtain an estimate of the unknown population parameters by using the sample observations, x1, x2 up till xn from the population। ठीक है, तो estimation क्या है? is a procedure by which we obtain an unbiased estimate of the population parameter on the basis of information contained in sample, and the observations are x1, x2 up till xn. So these are the observations of the sample. Suppose similarly we can say that x bar is a point, x bar is a estimator of population mean mu. Similarly s small s is estimator of population standard deviation, and p hat is an estimator of population proportion। ठीक है, अब आई थिंक आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो रही, एस्टिमेट और एस्टिमेटर में फ़र्क। और इस सारे प्रोसीजर को कहते हैं एस्टिमेशन, जिसमें आप एक्स बार लगाकर उसके फार्मूले की वैल्यू निकालते हो। तो ये सारा जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं एस्टिमेशन। ठीक है, अब हम इंटरवल एस्टिमेशन की तरफ जाते हैं। The next one is, as I have told you, that it has two parts, point estimation and interval estimation। तो point estimation तो आपने बहुत यूज किया, आपको याद होगा कि कभी हमने एक्स बार निकाला, कभी हमने पी हैट निकाला। ठीक है, पी हैट के बाद कभी हमने इसको वेरिएंसेस में जब हम गए तो वहाँ पर हमने इसको निकाला, वेरिएंस में निकाला। इसी तरह बी निकाला था, बीटा वन हैट, इसी तरह रो हैट जो आर की वैल्यू निकाली। दीज आर ऑल एस्टिमेटर्स। ठीक है, ये सारे क्या है? एस्टिमेटर्स हैं, और इनकी जो वैल्यू पर्टिकुलर आती है वो एस्टिमेट कहलाती है। तो आज हम जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटरवल एस्टिमेशन। अब अजीज तलबा, इंटरवल एस्टिमेशन से क्या मुराद है? देखिए, आपने एक पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट किया। अब मैं स्टार्ट से थोड़ा सा जा रहा हूँ। क्वेश्चन इज कि यू वांट टू सी कि स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स हैं वो क्या है। व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स in the NTS score, suppose for example, or what is the average height of student of university going students। ठीक है, तो आप इसको एस्टिमेट करते हो और एक्स बार की बुनियाद पर यह हाइपोथेसिस टेस्ट करते हो। सपोज ये कि जी हम कहते हैं कि जी स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स जो है वो दैट आर 50। स्टूडेंट की एवरेज मार्क्स क्या है? 50 हैं। ठीक है, तो ज़रूरी तो नहीं कि वो एग्जैक्ट वैल्यू फिगर हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो आप पैरामीटर को एस्टिमेट करते हो, हम सैंपल की बुनियाद पर एक्स बार निकाल कर, सपोज हमारा एक्स बार आ जाता है दैट इज़ 50, तो हम इसको कह देते हैं कि जी पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू की वैल्यू 50 होनी चाहिए। तो ज़रूरी तो नहीं, हो सकता है ये 45.5 हो पॉपुलेशन पैरामीटर, हो सकता है ये 49.5 हो, इट कैन बी 51.5 एंड इट कैन बी 52.0, कोई और वैल्यू भी हो सकती है उसके आसपास। भाई आपने एक्स बार निकाल कर उसके बाद टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से ये साबित कर दिया कि पॉपुलेशन का जो मीन है वो इतना है। ठीक है, या उसकी हमने टेस्टिंग कर दी, बट इट कैन बी अबव, इट कैन बी बिलो।
ठीक है, बात समझ रहे हैं कि पॉपुलेशन पैरामीटर को आपने एस्टिमेट किया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू वही हो। ठीक है, तो इंटरवल एस्टिमेशन में हम ये करते हैं कि वी गिव टू वैल्यूज, रेंज ऑफ वैल्यूज विद इन विच द ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर इज एक्सपेक्टेड टू लाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं, वी गिव रेंज ऑफ वैल्यूज, हम रेंज ऑफ वैल्यूज देते हैं। उन रेंज ऑफ वैल्यूज, ये दो वैल्यूज हैं, इनके दरमियान पॉपुलेशन पैरामीटर जो वो लाई करेगा। नाउ देयर आर चांसेस, देयर इज 99% चांस कि जी पॉपुलेशन पैरामीटर इन दो वैल्यूज के दरमियान लाई करेगा। ठीक है, तो इंटरवल एस्टिमेशन में हम ये करते हैं कि वी गिव एन इंटरवल अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। हम पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में इंटरवल बताते हैं कि ये इंटरवल है, इनके दरमियान पॉपुलेशन पैरामीटर जो है वो लाई कर सकता है। सपोज अगर मैं कहूँ कि जी पूरे पाकिस्तान में जो स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज हाइट जो है वो 5 फुट से लेकर 6 फुट तक हो सकती है। इससे मुराद यह है कि अब पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू जो है, एवरेज हाइट है, इट कैन बी बिटवीन 5 and 6 फीट। तो अब इसमें चांसेस, देयर आर 99% चांस, देयर इज 95% चांस। साथ हम ये बताते हैं कि पॉपुलेशन पैरामीटर जो है इन दो वैल्यूज के दरमियान लाई करता है। नो अब म्यू जो है वो इससे बाहर नहीं निकल सकता। सपोज अगर आपने अगर सिंगल पॉइंट एस्टिमेशन करते, जैसे कि स्टार्ट में हमने बताया पॉइंट कि एक्स बार की वैल्यू निकाली, आप कहते हैं जी एक्स बार चूंकि 40.5 आया या 50 आया है, इससे मुराद है कि पॉपुलेशन पैरामीटर भी 50 होगा। देयर कैन बी चांस कि पॉपुलेशन पैरामीटर 51.5 हो, इट कैन बी 49.5 आल्सो, एंड डिफरेंट वैल्यूज इट कैन टेक। लेकिन जब आप रेंज ऑफ वैल्यूज देंगे तो उससे मुराद ये है कि अब वो भाग नहीं सकता, अब उसको इस रेंज में रहना है। ठीक है, तो अब हम जब रेंज देते हैं तो हम बताते हैं कि ये रेंज है, इस रेंज के अंदर पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू जो है वो लाई करता है। तो इंटरवल एस्टिमेशन में क्या होता है, पॉइंट एस्टिमेशन में क्या है कि सैंपल स्टैटिस्टिक को यूज करके एक वैल्यू निकालते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में बताते हैं कि ये है। Whereas इंटरवल एस्टिमेशन में हम करते हैं रेंज, वी गिव रेंज ऑफ वैल्यूज विद इन विच द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर इज एक्सपेक्टेड टू लाई। बात समझ में आ गई। अब आप देखें, जब हम इंटरवल बनाते हैं तो अब आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए वी नो दैट। अच्छा अजीज तलबा, यहाँ पे आप बताता चलूं कि ये सारी थ्योरी वही जो हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में पढ़ी हुई है, जितने फार्मूले वहाँ पर पढ़े हुए हैं वही यहाँ पर यूज होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इस पोर्शन को बाद में रखा था, उस पहले वाले टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को हमने पहले पढ़ लिया था। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको हिंट देता जाऊंगा कि ये ऐसे ऐसे फार्मूला बनता जाएगा। तो सबसे पहले आपने टेस्ट कौन सा पढ़ा था, यू नो, हमने टेस्ट पढ़ा था, टेस्ट ये पढ़ा था। मैं इससे रिलेटेड आप तो इंटरवल एस्टिमेशन बनाऊंगा तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट पढ़ा था, और सिग्मा इज नोन था। ठीक है, और साथ एन इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 30। ये हमारा पहला टेस्ट था कि हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट मीन की थी। ठीक है, व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन was known and sample size was large, sample size was large। ठीक है, तो ये चीज अब हम इसके बारे में इंटरवल एस्टिमेशन करेंगे। म्यू नॉट तो नहीं ना दिया होगा, अब हमने म्यू के बारे में इंटरवल एस्टिमेशन करनी है। वी विल मेक इंटरवल एस्टिमेशन अबाउट म्यू। ठीक है, अब आप ये बताएं कि ये हमारा क्या होता था, टू टेल टेस्ट में क्या होता था, दिस वाज 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और यहां पर देखें तो क्या वैल्यू आती थी, जब हमने ये वाला टेस्ट लगाया था तो जी अल्फा बाई 2 और पॉजिटिव साइन के साथ जी अल्फा बाई 2। तो अल्फा बाई 2 इस तरफ है, इस टेल पर, अल्फा बाई 2 इस टेल पर है। ये दिस इज अल्फा बाई 2 एंड दिस इज अल्फा बाई 2।
बात समझ में आ रही है। अब इस फिगर को तो सारे वाकिफ है ना इसको, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है, ठीक है, नॉर्मल को फॉलो करती है, तो इसीलिए मैंने कर्व नॉर्मल बनाई, ठीक है। और ये इट लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, हमें पता है कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। नाउ इफ यू लुक एट दिस, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ये सारी आपको पता है कि टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी, टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी, यानी दूसरे लफ्जों में क्या कह रहा हूं मैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है 1। तो यहाँ पे नजर आ रहा है ना कि ये सारा अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 प्लस 1 माइनस अल्फा को ऐड करें, ये सारा एरिया तो कितना आना चाहिए 1। तो अब आप मुझे ये बता सकते हैं अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं इससे रिलेटेड, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन सारा, कैन आई राइट दिस कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये मैंने कहा था ना जहां पे इसके पैरेलल z की वैल्यूज चल रही हैं, यहां पे z की वैल्यू क्या है 0, सेंटर में z की वैल्यू क्या होती है 0, ये x है ना, बेसिकली x के अगेंस्ट z निकाला है। x क्या था हमारे पास, x इज अ नॉर्मल वेरिएबल विद x इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज नॉर्मल विद मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर। और अगर हम एक वेरिएबल नया डिफाइन करें x माइनस म्यू ओवर सिग्मा स्क्वायर ओवर सिग्मा, तो ये क्या बन जाता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, क्या बन जाता है SNV, यू नो दैट। और z की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है नॉर्मल ही होती है, लेकिन मीन 0 और वेरियंस क्या होता है 1। तो इसका मीन जो होता है यहाँ पर 0 है, ये देखिए मीन 0 है, स्टार है, सेंटर में z की वैल्यू 0 है। तो यहाँ ये x के पैरेलल हम z की वैल्यूज भी साथ बताते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो इस मीन के ये z की जो वैल्यू है, z इन दो वैल्यूज के दरमियान लाई करे माइनस z अल्फा बाई 2 और प्लस z अल्फा बाई 2। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आनी चाहिए, यहां से लेकर ये सारा जो पोर्शन है, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये किसके बराबर है 1 माइनस अल्फा। बस यहीं से हमने इंटरवल एस्टिमेशन करनी है ये बेसिकली। अब इस थ्योरी को समझ लें कि ये मैंने कैसे लिखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z की कोई भी वैल्यू इन दो z के दरमियान लाई करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 माइनस अल्फा। प्रोबेबिलिटी दैट अ वैल्यू ऑफ z आपको लिखा हुआ मैंने x माइनस म्यू ओवर सिग्मा है, will take a value between these two limits माइनस z अल्फा बाई 2 और प्लस z अल्फा बाई 2, इसकी प्रोबेबिलिटी आने की क्या है 1 माइनस अल्फा। अब इस स्टेटमेंट तो मैं लेके आगे चलूंगा, यानी आपने ये सीखा कि प्रोबेबिलिटी दैट माइनस z अल्फा बाई 2, ठीक है। और हमारा जब हम h नॉट टेस्ट करते थे, आपको याद है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये मैं साथ साथ रिलेट कर रहा हूं कि आपको पता चलता जाए कि हमने ये काम किया हुआ है। दैट वाज x बार माइनस म्यू और इसका स्टैंडर्ड एरर, ये बेसिकली क्या था स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो यहाँ पर एस्टिमेटर होता है, पॉइंट एस्टिमेटर, यहाँ पर उसका स्टैंडर्ड एरर होता है, ठीक है। और इसको मैं मजीद अगर लिखूं स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार, तो दैट वाज सिग्मा ओवर अंडर रूट n, यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार जो है, दिस इज बेसिकली स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार, ठीक है। तो ये z है हमारा यहाँ पर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें x बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर अंडर रूट n, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ z अल्फा बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। तो ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है 1 माइनस अल्फा के बराबर है। अब आप ऐसे करें, ये अब मैं इस इक्वेशन को नाउ द कोफिशिएंट मैं इसको यूज कर रहा हूं, ये 1 इक्वेशन हमारी, ठीक है। और यहाँ पे मैं बताता चलूं कि मैं करना क्या चाहता हूं, आई वांट टू फाइंड टू वैल्यूज विद इन विच द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू इज एक्सपेक्टेड टू लाई। तो वहां से मैंने कैसे फाइंड किया, मैंने एक इक्वेशन लिखी प्रोबेबिलिटी की, कि प्रोबेबिलिटी दैट z कैन टेक द वैल्यूज बिटवीन दीज टू वैल्यूज इज 1 माइनस अल्फा। उसके बाद मैंने z की वैल्यू फार्मूला पुट कर दिया, z का फार्मूला पुट कर दिया, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का फार्मूला पुट किया। अब आप देखें मैं इस चीज को सॉल्व कर रहा हूं, उसको मैं ये सारा सॉल्व करने के बाद यहाँ पे वापस पुट कर दूंगा। तो z अल्फा बाई 2, यानी ये पोर्शन मैंने वहां से उठा लिया है, इसको अलहदा सॉल्व करेंगे
और सॉल्व करने के बाद इसको वहां पे पुट कर देंगे जी। ठीक है, ये वाला पोर्शन वहां से उठाया, दोनों तरफ सिग्मा और अंडर रूट एन से मल्टीप्लाई कर दें। मैथमेटिक्स का असूल है, जब इस तरफ मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो माइनस जी अल्फा बाई 2 और मल्टीप्लाई कर दें सिग्मा और अंडर रूट एन के साथ इस तरफ भी, और ये आ जाएगा एक्स बार माइनस म्यू, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें सिग्मा और अंडर रूट एन, और साथ ये आ रहा जी अल्फा बाई 2। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ऐसे करें, क्योंकि हमने किसकी इंटरवल एस्टिमेशन करनी है, म्यू की, तो दोनों तरफ एक्स बार को सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों तरफ एक्स बार को सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो एक्स बार को सब्ट्रैक्ट करें यहां से, तो दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये देखें आप, ये एक्स बार तो माइनस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा और अंडर रूट एन, और ये आपने माइनस एक्स बार इस तरफ सब्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ भी आप माइनस एक्स बार अपनी तरफ से डाल दें, ये प्लस एक्स बार पहले वाला पड़ा हुआ है, माइनस म्यू है, और यहाँ पे भी माइनस एक्स बार और प्लस जी अल्फा बाई 2, इसको पहले लिखती है सिग्मा और अंडर रूट एन। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या बची, माइनस एक्स बार प्लस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा और अंडर रूट एन माइनस म्यू माइनस एक्स बार माइनस माइनस कॉमन लिया है तो अंदर माइनस चला जाएगा, जी अल्फा बाई 2 सिग्मा और अंडर रूट एन। तो ये अपने पास बची। अब आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वालिटीज रिवर्स हो जाती हैं, इनइक्वालिटीज रिवर्स हो जाती हैं। ठीक है, अगर मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं या माइनस कॉमन लूं या माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूं तो इनइक्वालिटीज क्या हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं। तो ये रिवर्स होने के बाद क्या बन जाएंगी, एक्स बार मैंने माइनस खत्म किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स बार प्लस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा और अंडर रूट एन। ठीक है, ठीक है जी, और ये जो थी वो लेस थी, ग्रेटर हो जाएगी, और एक्स बार माइनस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा और अंडर रूट एन। ठीक है, अब तान तो उसने टेढ़ा पतला हुआ, इसको जरा सीधा ताल लेते हैं। तो इसी चीज तो मैं यूं लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू आप जरा कंपेयर कर लें कि म्यू इज लेस देन दिस वैल्यू, क्या लिखा है जी, म्यू इज लेस देन दिस वैल्यू, पॉजिटिव साइन वाली वैल्यू से म्यू क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। जरा चेक करें, यहां क्या लिखा हुआ है, म्यू इज लेस देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, म्यू इज लेस देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू, तो ये म्यू इज लेस देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू तो हमने पहले लिख लिया इस तरफ, म्यू इज लेस देन, सिर्फ उल्ट किया, इधर वाली साइड उधर कर दी है, उधर वाली इधर कर दी है, ताकि बात समझ में आ जाए कि लोअर लिमिट को लेफ्ट साइड पे ले जाऊं और अपर लिमिट को राइट साइड पे कर दिया। यहां पे कुछ उल्ट था, लोअर लिमिट जो थी राइट साइड पे थी, अपर क्या थी, लेफ्ट साइड पे थी। ये देखें आपके सामने है, तो म्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, देखें ये म्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू आ गया, और यहां पे था म्यू इज लेस देन दिस वैल्यू, तो म्यू इज लेस देन दिस वैल्यू, ये आ गया। तो अब आप इस चीज को पुट इन दिस इंफॉर्मेशन इन वन, पुटिंग इट इन वन, तो प्रोबेबिलिटी दैट म्यू लाइज बिटवीन, ये आप उस चीज आपने पुट कर दी। ठीक है, वही चीज थी ना, जस्ट हमने ये पुट कर दी, जी अल्फा बाई 2 सिग्मा और अंडर रूट एन, और एक्स बार पॉजिटिव साइन के साथ जी अल्फा बाई 2 सिग्मा और अंडर रूट एन, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये है जी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली
कि म्यू जो है वो इन दो वैल्यूज के दरमियान लाई करने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा हो। अब अगर सपोज अल्फा जो है 5% है 0.05, तो 1 माइनस अल्फा क्या होगा 0.95, ठीक है 0.95। इससे मुराद क्या है कि म्यू इन दो वैल्यूज के दरमियान लाई करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जी 0.95। देयर आर 95% चांस दैट द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर विल लाई विद इन दिस इंटरवल, ठीक है। अब अगर इसको मैं जनरली लिखना चाहूँ तो सबसे पहला मैं जो लिखना चाहूँ, जैसे हमने पहले टेस्ट किया था, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट मीन व्हेन सिग्मा इज नोन एंड एन इज ग्रेटर देन 30, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन इंटरवल फॉर म्यू, ठीक है। ब्रैकेट में लिख ले सिग्मा इज नोन, वही जैसे टेस्टिंग में लिखते थे, एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तो ये हमारा जी पहला कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो इसको हमने 1 माइनस अल्फा इंटू 100, इसको तरीका लिखने का क्या है 1 माइनस अल्फा इंटू 100%, ये इसका प्रॉपर वे है लिखने का। 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू, तो क्या होगा जी, क्या है ये, म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो दिस इज बेसिकली एक्स बार यहाँ कैपिटल में यूज कर रहा हूँ इसलिए कि वो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए था। तो जब आप वैल्यू पुट कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पर हम छोटा एक्स बार लिख देंगे, ठीक है। तो इसी तरह एक्स बार प्लस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा 1/n, तो दिस इज बेसिकली 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। अब आप देखिए कि आपने ये बता दिया कि एक्स म्यू की ये दो वैल्यूज हैं जिनके दरमियान ये दो वैल्यूज है जिनके दरमियान पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू जो है वो लाई करेगा। आपने ये बता दिया कि ये वो दो वैल्यूज हैं जिनके दरमियान ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर इज एक्सपेक्टेड टू लाई। अब जरा गौर से करें कि ये जो एक्स बार लिखा आपने नेक्स्ट स्टेप में लिखा, आपने क्या किया है कि यहाँ पे पॉइंट एस्टिमेटर था, सपोज एक्स बार था, आपने जी अल्फा बाई 2 लगाया, और ये क्या चीज़ है सिग्मा और अंडर स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, तो म्यू आ गया। उसके बाद आपने एक्स बार विद पॉजिटिव साइन और साथ आपने लिख दिया जी अल्फा बाई 2, इसी तरह स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, यही है ना, बिकॉज स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार किसके इक्वल है, सिग्मा और अंडर रूट एन, इसके इक्वल है, क्यों जी। अब ये बताने का मकसद यह है कि मैं इसी में से जनरेट करता जाऊंगा ऑनवर्ड जितने भी कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू, ये तो आपने सिंपल बना लिया। नाउ अगर आप अब लिखें 1 माइनस अल्फा में, या विदाउट सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर इक्वेशन into 100% confidence interval for म्यू के लिए तारे हम ज़हन में रखिएगा, कभी ये प्रोपोर्शन के लिए होगा तो पी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जब वेरियंस चली आएगा तो सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। अब हमारे क्या है कि सिग्मा इज अननोन, दूसरा टेस्ट हमारा यही था ना, और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। लो जी, ये हमारा दूसरा बन गया इंटरवल एस्टिमेशन फॉर म्यू व्हेन सिग्मा इज अननोन एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तो आप क्या करते थे कि एक्स बार माइनस जी अल्फा बाई 2 आंखें बंद करके लिख दें, तो दैट वाज हम वहाँ पर स्टैंडर्ड एरर की जगह पर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन अननोन है, सैंपल ग्रेटर देन 30 है, तो यहाँ पर हम एस कैपिटल एस यूज कर लेते थे। तो बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पर, एक्स बार प्लस जी अल्फा बाई 2 एस ओवर अंडर रूट एन,
ये लें जी, ये बन गया। अब आपको जब इंफॉर्मेशन दी हुई होगी तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपको x बार दिया होगा, s दिया होगा, n दिया होगा, और आपसे कहा जाएगा कंप्यूट 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल या कंप्यूट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन म्यू, ठीक है। और जब आपको पता है कि सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन अननोन है, इंफॉर्मेशन जो आपको दी हुई है, तो यू कैन इजीली सॉल्व और फाइंड। तो अब ऐसे करते हैं, एक एग्जांपल ही कर लेते हैं इससे रिलेटेड कि ये 2 इंटरवल हमने बनाए हैं, उसके बाद मैं आपको इसको जनरलाइज कर दूंगा, मीन कि मैं आपको बता दूंगा कि यू कैन आल्सो मेक योर सेल्फ, आप जितने मर्जी इसमें इंटरवल बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें, सपोज फॉर एग्जाम्पल कहता है कॉन्फिडेंस इंटरवल इज कंस्ट्रक्टेड फॉर सैंपल साइज ऑफ 25 फॉर द मीन ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन सिग्मा। तो क्वेश्चन में लिख देता हूं, ले जी, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। द पंजाब पी बड़ा है, द पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट is studying traffic pattern on GT road ठीक है, नियर लाहौर। लो जी, पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट भी अच्छा काम करने लगा है। स्टडीइंग ट्रैफिक पैटर्न ऑन जीटी रोड लाहौर, नियर लाहौर। As a part of the study, the department needs to estimate the average number of vehicles. As the part of study, the department needs to estimate the average number of vehicles that pass the Ravi Bridge each day। ठीक है जी। अब क्या हुआ, द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट पास द रावी ब्रिज ईच डे, तो वो चाहते हैं कि पता चले कि एक दिन में कितनी गाड़ियां ऑन एवरेज गुजरती हैं। ठीक है जी। अ रैंडम सैंपल ऑफ (64) days gives x bar is equal to 5410। भाई 64 दिनों ने उन्होंने डिफरेंट सैंपल लिए, हर दिन में कितनी गाड़ियां गुजरी। फर्ज करो पहले दिन में 6000 गुजरी, दूसरे दिन में मे बी 4000 गुजरी, तीसरे दिन में 3000 गुजरी, फिर 6000। तो इन सारे 64 डेज में उन्होंने कहा, उन सबको ऐड किया, 64 पे डिवाइड किया, तो वैल्यू आई 5410। ठीक है। एंड स्टैंडर्ड डिवीजन विद द
680। लो जी, ये उसकी स्टैंडर्ड डिवीजन है। इसका डिवाइजर n होता है, ये ज़हन में रखिएगा। एस का डिवाइजर क्या, समेशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई n, और स्मॉल s जो होता है उसका डिवाइजर n माइनस 1 है, जो हम टी टेस्ट में यूज करते हैं। फाइंड कहता है फाइंड द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ म्यू पॉपुलेशन मीन, यानी कि ऑन एवरेज जो है एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो ये म्यू जो शो कर रहा है एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑफ पॉपुलेशन की बात हो रही है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स पर डे, ये म्यू क्या है, एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स पर डे। यानी इसका मुराद ये है कि अब हमें पता है कि वी नो दैट, अब सोल्यूशन में क्या है पहले लिख लेना, आपको दिया क्या हुआ है। ये इससे बड़ी पिक्चर सामने आ जाती है डाटा की। ये लाजमी लिखा करें कि n इज इक्वल टू 64 है, x बार इज इक्वल टू 5410 है, और s इज इक्वल टू 680 है। ठीक है, अब आपने बताना है कि जी एवरेज पॉपुलेशन जो मीन है म्यू वो किन वैल्यूज के दरमियान लाई करता होगा। अब हो सकता है आप बताएं 8 वैल्यू, तो जरूरी नहीं है उतनी हो। ठीक है, अब आप एस्टिमेट कर रहे हो ना, 5410 ये पॉइंट एस्टिमेट है ना, तो जरूरी तो नहीं है कि 5410 जो है गाड़ियां डेली गुजरती हों। अब आपने रेंज ऑफ वैल्यूज बतानी है। ठीक है, कि ये रेंज है जी, इसके दरमियान गाड़ियां गुजरती हैं। ठीक है, तो ये आपको जीवन था। आपने यहाँ से देखा कि n जो है वो साइज बड़ा है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन अननोन है, s दिया हुआ है, x बार दिया हुआ है, और जनरली वी नो दैट कि 1 माइनस अल्फा, ये पहले फार्मूला लिख लें, इनटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल को मैं CI लिख रहा हूँ, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज, तो यहाँ पे लिख दें जी कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू क्या है, x बार माइनस के साथ पहले वैल्यू आती है z अल्फा बाई 2 सिग्मा और अंडर रूट n। तो सिग्मा को आप काट के यहाँ पर s डाल दें जी, क्योंकि सिग्मा अननोन है ना। इसी तरह इसी तरह लिख ले, पॉजिटिव साइन के साथ वहाँ माइनस है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, z अल्फा बाई 2 s ओवर अंडर रूट n। तो ये है जी इंटरवल हमारा म्यू का। अब वैल्यूज पुट कर दे, तो वैल्यूज क्या पुट करोगे, पहले ये तो बताओ कि z अल्फा बाई 2 ये क्या है। तो ये क्रिटिकल वैल्यू जो हम निकालते होते थे, तो अब कैसे निकलेगी, देखो 1 माइनस अल्फा जो 90% का मुराद क्या है, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, इससे मुराद क्या है कि 1 माइनस अल्फा जो है वो 90% है, 0.90। 90% मीन 90 डिवाइडेड बाई 100। इससे अल्फा निकाल ले, इस तो इधर ले 0.90 तो उस तरफ, और अल्फा इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा दिस इंप्लाइज दैट कि अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर है जी, 1 माइनस तो 0.1 आएगा, 1 में से 0.9 माइनस किए तो क्या आया 0.1। तो अल्फा बाई 2 हमें चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ है, तो 0.05। तो अब हमें पता है कि z अल्फा बाई 2 चाहिए। अब ये है टेबल वैल्यू, जो z का टेबल देखना पड़ेगा बाई रिवर्स यूज ऑफ टेबल। तो दिस वैल्यू इज, वी नो, हमें पता है कि क्या वैल्यू होती है, 1.645। याद है ना, जब 0.05 हो यानी z 0.05 किसके बराबर है, 1.645। अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, नॉर्मल कर्व बनाने के बाद किसी एक टेल के ऊपर या इसी के ऊपर रख लें आप। तो ये वैल्यू अगर 0.05 है, इसको आप टेबल में देखें, तो रिवर्स यूज ऑफ 0.05 को तलाश करें और उसके अगेंस्ट लेफ्ट साइड पर z की वैल्यू देखें तो 1.6 आएगी, ऊपर देखें तो 5 आएगी, 0.05 दोनों को ऐड करें तो ये 45 बेसिकली एग्जैक्ट वैल्यू है। तो ये वो वैल्यू है। ठीक है, इधर हम माइनस का निशान लगा देते हैं, राइट साइड पे हम किस का निशान लगा देते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ। अब चूंकि अल्फा जो 90% मीन 10% है, 10% है तो अल्फा इज इक्वल टू 0.05 इस तरफ है, और अल्फा इज इक्वल टू 0.05
इस तरफ है, दोनों को मिलाएंगे तो 10% तब बनेगा ना, ठीक है जब, और ये 90% 0.90, ये हमारा वो 1 माइनस अल्फा है, दिस इज 1 माइनस अल्फा, दैट इज 90%, 90 by 100। तो ये भी वैल्यू इसी तरह पॉजिटिव साइन के साथ आएगी, नेगेटिव साथ आएगी 1.645। तो बहरहाल ये जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू 1.645 आई। इसको यहाँ पुट करना है इस जवाब पर। अब देखते हैं जी पुट करके क्या होता है। एक्स बार की वैल्यू पुट करें तो 5410 माइनस 1.645 मल्टीप्लाई विद एस 680 divided by 64 and this is mu 5410 plus 1.645 multiply with 680 divided by 64। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए क्या आता है। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये वैल्यू आ जाती है जी 52.5270.2 और ये वैल्यू आती है 5549.8। लो जी, ये साबित हो गया कि ये जो एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स पास थ्रू दैट ब्रिज है वो इट लाइज बिटवीन 5270 से लेकर 5550, ऑलमोस्ट 5550 है एवरेज नंबर उन चीन के दरमियान है। अब इसको राउंड करें जनाब, इसलिए कि बसेस जो हैं तो वो 0.2 बस तो नहीं ना हो सकती, तो हम इसको राउंड करके लिखेंगे। तो ये है जी हमारी फिगर, दिस इज अवर कि पॉपुलेशन पैरामीटर इन दो वैल्यूज के दरमियान लाई करता है। यानी आपने अगर देखा जाए तो इस तरह बनाई थी, तो यहाँ जी की वैल्यू 0 है, तो ये जो वैल्यू है ना म्यू, यहाँ पे म्यू सेंटर में म्यू होता है, म्यू की ये वैल्यू क्या है 5270 और इस तरफ वाली वैल्यू क्या है 5500। तो पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू जो है इन दो वैल्यूज के दरमियान लाई करता है। ठीक है, तो ये आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल बना लिया। नाउ यू कैन मेक ईच एंड एवरी कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर दैट पर्टिकुलर टेस्ट। आपने जितने टेस्ट पढ़े हुए हैं कोई एक उठा लें, मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे बना सकते हैं। सपोज अब हम प्रोपोर्शन का बनाना चाहते हैं, तो आपको पता है कि प्रोपोर्शन का फार्मूला क्या है, z इज इक्वल टू पी हैट माइनस पी ओवर अंडर रूट पी टी ओवर एन, यही है ना। z इज इक्वल टू पी हैट माइनस पी ओवर पी क्यू ओवर एन। ठीक है, तो अब आपने p का बनाना है, सपोज इस वाले p का इंटरवल बनाना है, तो इस p का इंटरवल कैसे बनेगा, लाजमी बात है इसके ऊपर हैट आ जाएगा, ये हमारे एस्टिमेटेड हो जाएंगे। तो इसको उठा के ले जाए, मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपने जब x बार एस्टिमेटेड था x बार इधर आया था, x बार माइनस म्यू सिग्मा और अंडर रूट एन, तो आपने जब इसका बनाया तो x बार ये वाली चीज़ इधर आई, माइनस का निशान लगाया, ये z के बराबर था तो z अल्फा बाई 2 लगा दिया, साथ डिवाइजर तो लिख दिया, स्टैंडर्ड एरर ऑफ। फिर उसके बाद किसके बारे में बन रहा है, ये म्यू के बारे में, तो यहाँ म्यू आपने डाल दिया, उसके बाद एक पॉजिटिव साइन के साथ बना दिया। ठीक है, z अल्फा बाई 2 सिग्मा और अंडर रूट एन। ये हिट एंड ट्रायल मेथड बता रहा हूँ कि आपने कहाँ से कोई भी आपको आए तो आप भूल नहीं सकते। अगर आपको टेस्ट स्टेटिस्टिक याद है ना तो वहाँ से आप इंटरवल एस्टिमेशन का भी बना सकते हो। अब देखो मैं बनाता हूँ यहाँ से z कैसे बनेगा, ये देखो, इसको उठा के ले जाओ, तो p एट आ गया, माइनस का निशान आया, तो इसके साथ अल्फा बाई 2 लगा दो और साथ के आ जाएगा मल्टीप्लाई p हैट q हैट ओवर n। ठीक है, और ये आ गया, और इसके बारे में मान रहा है p के बारे में, इसी तरह पॉजिटिव साइन के साथ p हैट पॉजिटिव साइन और z अल्फा बाई 2 और साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा p हैट q हैट ओवर n। तो ये जो चीज़ बन गई, दिस इज कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रपोर्शन p
ठीक है, पॉपुलेशन प्रपोर्शन P। तो ये है जी कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रपोर्शन P। तो यही हमने लार्ज सैंपल का पढ़ा हुआ है, इसमें स्मॉल वाला कंसेप्ट नहीं होता। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब जरा एक हम और कर लेते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर T। तो व्हाट वाज द T, बेसिकली T टेस्ट के बारे में, यानी हम लगाना चाहते हैं सपोज मेक अ कॉन्फिडेंस इंटरवल for population mean mu when sigma is unknown और n is less than 30। लो जी, ये है सारी उसमें कंडीशन, व्हेन सिग्मा इज अननोन और n इज लेस देन 30। तो आप क्या यूज करते हैं इसमें, वी यूज T टेस्ट। तो जरा पहले बताओ, मैं पहले सर T का फार्मूला तो लिखो। तो h बार माइनस म्यू स्मॉल s ओवर अंडर रूट n, ये लिखा। अब यहाँ पे T अल्फा बाई 2 हम यूज करते हैं और साथ n माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लगा दो, इसको उठा के उधर ले जाओ। तो ये बन जाएगा T अल्फा बाई 2 with n minus 1 degrees of freedom और साथ स्मॉल s ओवर अंडर रूट n। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है जी, x बार ये उधर चला गया, x बार जो है म्यू इधर चला गया, x बार ये उधर जाके माइनस हुआ, तो x माइनस के साथ तो ये बन गया। और इसी तरह म्यू ये आ गया x बार विद पॉजिटिव साइन T अल्फा बाई 2 विद n माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम स्मॉल s और अंडर रूट n। तो लो जी, ये बन गया 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू व्हेन सिग्मा इज अननोन एंड n इज लेस देन 30। तो ये उसका बन गया। ठीक है जी, अब जितने टेस्ट है ना हमने पढ़े हुए, मैं 1 बाई 1 उनका बता रहा हूं आपको, बट इफ आई कुड नॉट डिस्कस सम ऑफ देम यू कैन मेक योरसेल्फ। ठीक है, आपके लिए आसानी से तरीका बता दिया कि आप आराम से उसको बना सकते हो। यहाँ पे उसका डिवाइजर आता है, जो भी टेस्ट स्टेटिस्टिक का डिवाइजर हो, ये क्रिटिकल वैल्यूज होती हैं और साथ वो एस्टिमेटर जिसके बारे में टेस्टिंग हो रही हो। ठीक है, तो ये है जी इंटरवल एस्टिमेशन इसकी। इसी तरह अब आप बताएं मुझे, अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपने डिफरेंस बिटवीन मीन्स की बनानी है तो यू हैव टू फाउंड द हाइपोथेसिस। जैसे आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर डिफरेंस बिटवीन मीन्स किया था ना लार्ज सैंपल केस में, सेम इज द केस कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब मैं एक और कॉन्फिडेंस इंटरवल बना रहा हूं, दैट वाज थर्ड वन, तो ये फोर्थ वन है। For difference between means, ठीक है, और आगे कंडीशन वही है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 और या सिग्मा 1 पहला वो बना ले, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 नोन। जब भी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 नोन हो, फिर हम सैंपल साइज की तरफ नहीं देखते, कुछ भी हो हमने वी यूज ऑलवेज जी टेस्ट। ठीक है, तो ये तो आपको पता है ना पहले से। तो अब जरा जी टेस्ट देखिए क्या होता है। स्टॉप यहीं से बनाना है हमने, x बार 1 माइनस x बार 2। ये इसीलिए मैंने टेस्टिंग पहले आपको पढ़ा दी थी कि यहाँ पे मुझे आसानी हो। तो दैट वाज सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर
n2। अब इसको उठा के उधर ले जाएं, उसके साथ देखें और किसके बारे में बनेगा वो सारा केस वही बन जाए। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये देखो x बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस निशान साथ z अल्फा बाई 2 साथ लगा दे और ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 और ये आ गया μ1 माइनस μ2, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन, और यहां पर ये पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो z अल्फा बाई 2 सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। लो जी, ये बन गया डिफरेंस बिटवीन मीन स्टार। ठीक है, इसी तरह वी कैन आल्सो मेक, ये दैट वाज नंबर 4। और अगर इफ सिग्मा उसी तरह जैसे हम पहले बनाते थे, इफ दे आर अननोन एंड सैंपल साइजेस आर लार्ज, कॉन्फिडेंस इंटरवल for μ1 minus μ2, difference between means when sigma 1 and sigma 2 are unknown but n1 n2 greater than 30। तो जारी बात है यहाँ पे सिर्फ ही चेंज क्या आ जाएगी, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा s1 आ जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगी s2 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे भी इसी तरह चेंज आ जाएगी s1 और s2 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन मीन्स व्हेन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर अननोन बट सैंपल साइजेस आर लार्ज। तो अजीज तलबा, अब यहाँ तक मैं इसको ख़त्म करूँगा क्योंकि मैंने आपको एक तरीका बता दिया हाउ वी कैन फाइंड आउट द इंटरवल एस्टिमेशन फॉर पॉपुलेशन पैरामीटर्स। ठीक है, तो पॉपुलेशन पैरामीटर्स के दरमियान पॉपुलेशन पैरामीटर्स के लिए हम इंटरवल एस्टिमेशन कैसे बनाते हैं, बिकॉज इन इंटरवल एस्टिमेशन वी गिव द रेंज ऑफ वैल्यूज विद इन विच द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर इज एक्सपेक्टेड टू लाई। ठीक है, तो हम रेंज ऑफ वैल्यूज बताते हैं कि ये पॉपुलेशन जो ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर है वो इन दो वैल्यूज के दरमियान कहीं लाई करता होगा। तो अब आपने आज के लेक्चर में कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर अ सिंगल सैंपल किया व्हेन सिग्मा इज नोन n इज ग्रेटर देन 30। उसके बाद आपने व्हेन सिग्मा इज अननोन n इज ग्रेटर देन 30। उसके बाद हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन किया। ठीक है, उसमें कोई सिग्मा नोन और n इज लेस देन 30 वाला कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपने डिफरेंस बिटवीन मीन्स किया। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, उसके बाद जो आपने काम किया वो डिफरेंस बिटवीन मीन्स में भी दो केसेस थे। वन वाज अबाउट व्हेन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर नोन एंड द अदर वाज व्हेन दे आर अननोन। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।